عوامی سواری کی قیمت میں اضافہ، چائنیز موٹر سائیکل ساز کمپنیوں کی جانب سے 2000 روپے کا اضافہ کیا گیا تو کاروباری حضرات نے شدید پریشانی کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین فرینڈز الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا محمد نوید خان کہتے ہیں دن بدن قیمتوں میں اضافہ کاروبار کے لیے تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ چائنا موٹر سائیکل ساز کمپنیوں کی جانب سے موٹر سائیکل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا۔ موٹر سائیکل کی قیمت میں 2000 روپے تک کا اضافہ ہوا، جس پر ڈیلرز کی جانب سے شدید پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین فرینڈز الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا محمد نوید خان کہتے ہیں موٹر سائیکل کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے کاروبار متاثر ہو چکا ہے۔ کمپنیوں کو بھی ریٹ کم کرنا چاہیے، لیکن کمپنیاں اپنی من مرضی کر رہی ہیں۔ جب ریٹ بڑھتا ہے تو کسٹمر کی قوت مدافعت جو وہ متاثر ہوتی ہے، جب وہ متاثر ہوتی ہے تو دکاندار بھی متاثر ہوتا ہے۔ ڈیلرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل کی قیمت بڑھنے سے عام آدمی کی قوت خرید متاثر ہو چکی ہے اور کاروبار بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاروبار متاثر ہوتا ہے تو نہ صرف کاروباری طبقہ بلکہ ہمارے ساتھ جڑے مزدور طبقے کا روزگار بھی متاثر ہوتا ہے۔ اپنی من مرضی کمپنی کر رہی ہے، 2000 روپیہ ریٹ، آئے دن 2000 روپیہ ریٹ۔ لہٰذا ہماری اس حکومت سے اپیل ہے کہ جس طریقے سے وہ ڈالر پر کنٹرول کر رہے ہیں اس طریقے سے کمپنیوں پر بھی کنٹرول کریں تاکہ ریٹ کنٹرول ہو، ہمارے کاروبار اچھے طریقے سے چلے۔ موٹر سائیکلز ڈیلر نے مطالبہ کیا کہ حکومت موٹر سائیکل ساز کمپنیوں کی جانب سے خود ساختہ قیمتوں میں اضافے پر ایکشن لے اور قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور ابھی آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن کا انتخابی شیڈیول کے دوران محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں تبادلوں کا نوٹس۔ ایکسائز انسپیکٹر تنویر عباس کاٹھیا کا لاہور سے فیصل آباد تبادلہ روکنے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ چند روز قبل بھی الیکشن کمیشن نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن افسران کے تبادلے رکوا دیے تھے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سرکاری محکمے جو ہیں وہی انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے انتخابی شیڈول کے دوران ہی دوسری بار تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے لاہور سے انسپیکٹر تنویر حسین کاٹھیا کا تبادلہ جو ہے وہ فیصل آباد کر دیا گیا، جس پر الیکشن، اور جبکہ دیگر انسپیکٹر سے بھی تبادلے کیے گئے ہیں، جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کی جانب سے ایکسائز حکام کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس تبادلے کو فوری طور پر روکا جائے۔ اس سے قبل بھی چند روز قبل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن افسران کے تبادلے کیے گئے تھے، جن میں فیصل آباد کے 2 افسران شامل تھے۔ اس پر بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس لیا گیا تھا اور ان دونوں تبادلوں کو رکوا دیا گیا تھا۔ تاہم اب ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حکام کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ چونکہ فیصل آباد NA 108 میں الیکشن ضابطہ اخلاق کے تحت یہ خلاف ورزی ہے، 16 اکتوبر کو یہاں پہ ضمنی انتخاب ہوگا اور الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد کسی بھی قسم کے تقرر و تبادلے نہیں ہو سکتے، لہذا فوری طور پر یہ جو تبادلے کیے گئے ہیں ان کو منسوخ کیا جائے۔ چند روز قبل بھی افسران کے تبادلے رکوا دیے گئے تھے۔ بہت شکریہ عمیر عظمت، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جھنگ کے MS ڈاکٹر الطاف حسین کا تبادلہ کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ کو بطور MS تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ اس سے پہلے بطور DHO میڈیکل سروس کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جنگ کے MS ڈاکٹر الطاف حسین کا تبادلہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ کو بطور MS تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ اس سے پہلے بطور DHO میڈیکل سروسز کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، جنگ کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے جو ہے MS کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر الطاف حسین بوانا اس سے پہلے MS کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ کو بطور MS تعینات کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ اس سے پہلے جو ہے وہ DHO میڈیکل سروسز کے طور پر جنگ میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ پہلے بھی DHQ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں MS کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ جی ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ بطور MS تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ وسیم عزیز، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ٹرینوں کی بندش نے محکمہ ریلوے کو خسارے میں ڈال دیا۔ فیصل آباد میں ریلوے ملازمین تاحال تنخواہیں نہ لے سکے۔ ملازمین نے احتجاجاً سک لائن اور واشنگ کا کام بند کر دیا۔
तनख्वाहें दो, काम लो। महकमा रेलवे ने सारा खसारा मुलाजमीन पर डाल दिया। रेलवे मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें ना मिल सकी। रेलवे मुलाजमीन ने सिक लाइन और वाशिंग लाइन पर काम बंद कर दिया। रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने तक काम ना करने का फैसला कर लिया। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहें ना मिलने से घरों के चूल्हे बंद पड़े हैं। महकमा रेलवे जुल्म पर उतर आया है। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। मैं 1 महीना 20 दिन तनख्वाह नहीं मिली। 15 को आती है, आज अगले महीने की 5 तारीख हो गई है, हमें तनख्वाह नहीं मिली। हमें 3-4 दफ़ा ट्रैक भी किया है, अफसरान बाला से मुतालबा भी किया है कि हमें तनख्वाह दें, हमारे बिल नहीं अदा हुए, बच्चों की फीस नहीं अदा हुई, सौदा नहीं मिल रहा। उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें वो तनख्वाहें दें और अपना हम काम अपने आराम से करें। अगर हमें तनख्वाहें ना मिली तो हम ऐसी हड़ताल भी करेंगे और अफसरान बाला को पहले हम आगाह कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मैसेज नहीं आया। रेलवे मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहें ना मिलने पर वाशिंग लाइन और ट्रेनों को वॉश करने का काम बंद कर दिया गया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, रीडिंग सिर्फ 30 दिन की होगी। 30 दिन से जायद रीडिंग पर मुतल्लिका मीटर रीडर के खिलाफ एक्शन होगा। तमाम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शंस की रीडिंग वक्त पर होगी। तमाम सनती सेक्टर की रीडिंग बैचेस की मुनासबत से होगी। फेस्को ने कमर्शियल कनेक्शंस की रीडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। मजीद जानते ओवैस अली से। जी ओवैस अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शंस की रीडिंग मुकर्रर वक्त पर होगी और 30 दिन से जायद रीडिंग करने वाले मीटर रीडर के खिलाफ महकमाना एक्शन भी लिया जाएगा। इसी वाले से फेस्को की जानिब से रीडिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। घरेलू कनेक्शंस के साथ साथ जो है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस की जो रीडिंग है वो 30 दिन की होगी और 24 बैजेस की जो मुकर्रर तारीख हैं, जो मुतल्लका तारीख हैं, उन पर जो है वो रीडिंग की जाएगी। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को जो है वो हदायत जारी कर दी गई हैं कि मीटर जो हैं वो अपनी मुतल्लका तारीख पर ही सार्फिन को 30 से ज़ायद दिन की रीडिंग ना करें, ताकि सार्फिन के जो तहफ़्फ़ुज़ात है फेस्को तक वो दूर हो सकें। और इसके साथ साथ जिन सार्फिन को जो है वो ओवर बिलिंग की गई या फिर 30 से ज़ायद दिनों की रीडिंग की गई, मुतल्लका मीटर रीडर के खिलाफ महकमाना एक्शन लिया जाएगा और जो है वो मुतल्लका मीटर रीडर को जो है वो सस्पेंड भी किया जाएगा। मज़ीद फेस्को हुकाम का यही कहना है कि मीटर रीडिंग के शोबा में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और डोमेस्टिक सार्फ के साथ साथ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस की जो रीडिंग है वो तमाम तर हदायत मीटर रीडर्स को जारी कर दी गए हैं कि मुतल्लका तारीख पर ही जो है वो बैजेस की रीडिंग की जाए और रीडिंग में ताख़ीर हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं। 30 दिन से ज़ायद रीडिंग पर मुतल्लिका मीटर रीडर के खिलाफ एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया ओवैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेसबुक पेज पर शहरी की जानिब से समनाबाद स्पोर्ट्स के हवाले से शिकायत पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा करते हुए 2 साल से बंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सोमवार से शहरियों के लिए खोलने की हिदायत जारी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, फेसबुक पेज पर शहरी की जानिब से समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से शिकायत पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा करते हुए 2 साल से बंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सोमवार से शहरियों के लिए खोलने की हिदायत कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जी आज यहाँ पे समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं और कुछ दिन पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर के फेसबुक पेज पर एक समनाबाद के रिहायशी ने एक कमेंट किया था कि हमारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो 2 साल से बंद पड़ा है। सन 2020 के अंदर जब कोविड आया था उस वक्त इसको कोविड सेंटर में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद से अभी तक इसको स्पोर्ट्स के लिए दोबारा नहीं खोला गया। इस कमेंट को हमने बड़ा इमीडिएटली इस पर एक्शन स्टार्ट किया और मैंने जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी लगाई। मैडम ने इसको सारे को जो है वो फंक्शनलाइज करने में बड़ा एक एक्टिवली इसमें किरदार अदा किया है और आज हम इसको दोबारा खोल के इसकी सफाई वगैरह हमने आज शुरू करवा दी है। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह विद इन 3 डेज इसके अंदर इंशाल्लाह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ 2 साल के बाद रिज्यूम होंगी। मैं लियाने समनाबाद को और जो आसपास के जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे बड़ी हेल्दी कॉम्पिटिशन जो हैं वो देखने को। दूसरी जानिब पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के एहलकारों के लिए खुशखबरी। एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल ने हेड कांस्टेबल्स की प्रमोशन का कोटा 25% बढ़ाने की सिफारिशात आईजी पंजाब को इरसाल कर दें। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत सूबा भर की पेट्रोलिंग पुलिस की एहलकारों के लिए खुशी की खबर सामने आ गई है। हवालदारों को
प्रमोशन देने के लिए 25% कोटा बढ़ाने की सिफारिशात आईजी पंजाब को अरसाल कर दी गई हैं। एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल की जानब से आईजी पंजाब को तहरीरी तौर पर जो सिफारिशात अरसाल की गई उसमें उनकी जानब से ये बताया गया कि माजी में हवालदारों को जो ASI के तरक्की के म्यार पर पूरा उतरते हैं उनको तरक्की देने का कोटा 50% तक मौजूद था। 50% तरक्की के म्यार पर पूरा उतरने वाले हवालदारों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी जाती थी, मगर 50% तरक्कियों के बावजूद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की सीटें खाली रहती थी, जिसकी वजह से महकमाना अमूर मुतासर हो रहे हैं। उनकी जानब से ये इस्तदा की गई कि हवालदारों की तरक्की का कोटा 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया जाए, ताकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां देने के बाद वो सीटें फिल की जा सकें और महकमाना अमूर को बेहतर तरीके से। ओहदे पर तरक्कियों का कोटा 50% है। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में मदनी मरकज जंग सिटी को सजा दिया गया। मदनी मरकज में नात ख्वानी का सिलसिला भी जारी। मदनी मरकज आने वाले नमाजियों को भी माह रबीउल अव्वल के हवाले से आगाही फराहम की जा रही है। मदनी मरकज में तालीम हासिल करने वाले तलबा भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। आपको बता रहे हैं, माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में मदनी मरकज जंग सिटी को सजा दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में माह रबीउल अव्वल को जो है वो निहायत ही अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। जंग सिटी में मदनी मरकज़ को जो है वो सब्ज़ रंग की बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मदनी मरकज़ में जो तलबा हैं, बड़ी तादाद में यहाँ तलबा हिफ्ज़ और किरत की जो है वो तालीम हासिल करते हैं। उनकी जानिब से यहाँ पर जो है वो बड़ी अकीदत के साथ माह रबीउल अव्वल को मनाया जा रहा है। नात ख़ानी के दौर चल रहे हैं। इसी के साथ नमाज के लिए आने वाले नमाजियों को माह रबीउल अव्वल की फजीलत के बारे में भी आगाही दी जा रही है। मेरे साथ कोई नात खान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, माह रबीउल अव्वल को किस तरह मना रहे हैं, ये खुशियाँ किस तरह मना रहे हैं? ये खुशियाँ तो हम नहीं मना रहे, ये खुशियाँ जिब्रील ने भी मनाई थी और इससे बड़ी अकीदतमंदी से हमारे दारुल इस्लामी के मदनी मरकज़ फज़ान मदीना मद्दन शाह में बड़ी अकीदत से मना रहे हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। नात पढ़ें। जी बिल्कुल, इसी तरह माह रबीउल अव्वल को नहायत ही अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मदन शाह में इस टाइम बड़ी तादाद में जो तलबा हैं वो नात ख़ानी कर रहे हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर आने वाले नमाजियों को यहाँ पर जो है वो माह रबीउल अव्वल के मनाने के हवाले से तालीम का अमल भी शुरू है। जी, माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में मदनी मरकज जंग सिटी को सजा दिया गया है। बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मोहसिन इंसानियत खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासबत से कश्मीर पुल अंडरपास को बरकी कमकमों से सजा दिया गया। कश्मीर पुल अंडरपास बरकी कमकमों से जगमगाने लगा। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा सजावट के हवाले से। जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का महीना है रबीउल अव्वल, और इस सिलसिले में शहर की मुख्तलिफ शाहराहों को, गली कूचियों को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर पुल पर, तो बरकी कुमकुमों से सजाया गया है और बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, मेरे साथ मौजूद भी है, ये उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना है और लोगों की जानिब से बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है, खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। ये कश्मीर पुल बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई गई, क्या कहेंगे सवाल? जी, आप तो जैसे जानते हैं, ये जो ईद 12 रबीउल अव्वल है, ये हमारी ईदों से सबसे बड़ी ईद है, ठीक है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ईद में है, उसमें खुशी में हमें अपने घरों को सजाना चाहिए, गलियों को सजाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और लोगों में इनकी मोहब्बत उजागर करनी चाहिए। अब ये कश्मीर पुल पे हम खड़े हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सजाया हुआ है बरकी कुमकुमों से, ठीक है। दूसरे शहरों को भी सजाना चाहिए और मोहब्बत को उजागर करना चाहिए, ठीक है ना। तो यही कहना है कि जिस तरह से कश्मीर पुल को सजाया गया है, इस तरह जो दीगर जगह हैं उनको भी सजाया जा रहा है और सजाना चाहिए भी, और बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है कश्मीर पुल। और इनका ये पुल अंडरपास को सजा दिया गया। अरसलान, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।